we will just continue our topic of mesh analysis and try and finish this topic inshallah today, and also try and start the next topic, which is basically linearity and superposition, which is yet another technique to analyze circuits, or rather I should say it is a circuit theorem to analyze circuits. Okay, so these are basically just examples. So today, as far as this topic is concerned, mesh analysis and nodal analysis, we will just keep discussing some more examples that are in the slides. And because we've already discussed the theory as to how we should apply nodal or mesh analysis in the presence of voltage or current sources. तो जो सुपर नोड और सुपर मैश वाला जो केस है वो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है, यानी उसकी थियरी डिस्कस कर ली है, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं. सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू दीज डू अ बिट मोर एग्जांपल्स. ठीक है, सो यहाँ पे हमने मैश इक्वेशंस लिखनी है. सो वी बेसिकली हैव 5 meshes that have already been identified for us, but if they are not identified, so we should easily be able to identify them by simply realizing the fact that सॉरी अच्छा सॉरी जो एक मिनट ज़्यादा दीजिएगा मुझे. So we should easily be able to identify that a mesh, I mean how many meshes there are and what are the mesh currents that we want to have just by looking at the circuit, because a mesh is a loop within which there is no other loop. So we can easily see that there are 5 meshes and therefore there would be 5 mesh currents or 5 variables. In other words, ultimately we would end up with 5 equations and 5 unknowns. ठीक है, because हमारा जो calculator है, it is only able to solve 3 or at most 4 simultaneous equations. For majority of us it's just 3. So we should ideally try and eliminate 2 variables from those 5 equations in order to have 3 equations and 3 unknowns. ठीक है, I think that's it. इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जैसे पहले डिस्कस किए थे कि और मैश करंट्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती हैं. हो सकता है कुछ मैश करंट्स क्लॉकवाइज हों, कुछ एंटी क्लॉकवाइज हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर. आप क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं व्हेन अप्लाइंग केवीएल, यू कैन डू दैट. आप एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. ठीक है, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने वो ये अंडरस्टैंड करनी है कि जब आपने एक दफ़ा मैश करंट मिसाल के तौर पे एक दफ़ा आपने आइडेंटिफाई कर ली है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो जिस डायरेक्शन में एंटर होगी एक रजिस्टर के थ्रू, वो जो टर्मिनल है उसको हमें पॉजिटिव कहना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट करंट. ठीक है, तो ये पैसिव साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. ठीक है, सो एनीवे लेट्स जस्ट गो अहेड एंड राइट आउट द इक्वेशंस. सो फॉर इंस्टेंस इफ वी कंसिडर द फर्स्ट मैश, ठीक है, तो इफ आई स्टार्ट हियर, ठीक है, आई वुड राइट 5i1 because by Ohm's law I1 is entering this resistor and I just have 5i1. इसी तरह से ये जो करंट है ये इसी डायरेक्शन में एंटर हो रहा है through the 2 ohm resistor. ठीक है, so I will write 2i1, but there is a current that is exiting this terminal as well, which is basically i3. So I should write minus i3. ठीक है, minus 4 because of this voltage source. ठीक है, plus 2 because the polarity is positive with respect to i1 because i1 enters in this direction, but there is another current that exits this terminal as well. So i1 enters and the other current that exits is i2, and the whole thing would be equal to 0. ठीक है, इसको अगर हम rearrange करें तो we have basically 5 6 7 8 9 i1. ठीक है, so 9 i1, and then I have an i2 term minus 2 i2. I have an i3 term minus 2 i3 equals 4. So this is my first equation. ठीक है, जब एक दफ़ा रीअरेंज कर लें, यू ब्रिंग दैट इक्वेशन इनटू द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, तो फिर आप उसको नंबर दे सकते हैं 1. ठीक है, सो दिस इज दिस इक्वेशन, दिस वन, ये वेरिएबल, ये इक्वेशन, सॉरी वेरिएबल तो सारे हैं ऑब्वियसली, एंड दिस इज द कांस्टेंट दैट इज ऑफ कंसर्न. ठीक है, सो इसकी अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बड़ा सिंपल है, यू गेट बेसिकली 9i1 minus 2i2 minus 2i3 equals 4. ठीक है, i4 और i5 के जो कोएफिशिएंट्स हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इन द फर्स्ट इक्वेशन दे आर सिंपली 0. तो बेसिकली बाकी सारे लूप्स में भी इसी तरह से करना है. मिसाल के तौर पे अगर हम ऐसा कोई लूप ले लें, फॉर इंस्टेंस ये वाला ले लें जिसके बहुत सारे नेबर्स हैं, नेबरिंग मैशेस हैं, तो अगेन ये कोई इतना मुश्किल नहीं है.
वी कैन स्टार्ट विद दिस रजिस्टर और इस टर्मिनल के अंदर I2 जो है वो एंटर हो रहा है. तो वी कैन राइट टू I2 because I2 enters this terminal, so it's going to induce a positive polarity, but the current I1 actually exits this terminal, so I should write minus I1. ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे. While applying KVL we arrive at this source here, so we can write +4 and then we arrive at this resistor here. Again I2 यहाँ से enter हो रहा है लेकिन I3 जो है वो exit हो रहा है. So +4 सॉरी नहीं ठीक है, ये तो 4 वोल्ट्स था. +4 I2 minus I3. ठीक है, so this is +4 I2 minus I3 प्लस क्योंकि 1 ओम है. ठीक है, and I2 enters this terminal, so we will say I2 minus I5. ठीक है, because I5 exits this terminal in this direction. ठीक है, then we come to this resistor और यहाँ पे क्योंकि I2 enter हो रहा है और क्या चीज़ exit हो रही है, I4. ठीक है, then we come to this point here. यहाँ से अगर हम KVL अप्लाई करते हुए इस टर्मिनल को फर्स्ट एक्सेस कर रहे हैं तो we will write -10 and then we say +2 I2. The whole thing is equal to 0. तो काफ़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनती है इस मैश की, बिकॉज यू नो इस मैश के साथ सारे मैशेस नेबर्स थे. ठीक है, सो वी हैव ऑल द मैश वेरिएबल्स या करंट वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन और इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं. जी जी नहीं, बहरहाल अच्छा सवाल है, क्लेरिफाई कर देते हैं यहीं पे. देखें, जो पहला मैश है ना उसके बहरहाल ये तो इक्वेशन एक हो गई, इसको मैं अगर आपकी परमिशन हो तो इसको तो मैं डिस्कार्ड करता हूँ. ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं पोलैरिटी को डिस्कस करने के लिए, वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी को डिस्कस करने के लिए. तो जो पहला मैश है उसके लिए जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो बाय द वे मैं पहले मैश में भी क्लॉकवाइज चला था. ठीक है, और दूसरे मैश में भी क्लॉकवाइज चला हूँ KVL अप्लाई करते हुए. ठीक है, ये मैं KVL अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, मैं मैश करंट की बात नहीं कर रहा. ठीक है, मैश करंट तो वैसे ही गिवन है कि I1 यानी I1 और I2 दोनों क्लॉकवाइज हैं, लेकिन आपने जब KVL लगाना है तो आपकी मर्जी है, आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द रूल्स. तो अज्यूम करें हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं जो हम चले थे. तो जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जब हम इस पॉइंट पे आते हैं, जाहिर बात है क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 वोल्ट्स का जो सोर्स है उस पर हम इस यहाँ से एंटर होंगे. ठीक है, जब यहाँ से एंटर होंगे तो -4 लिखा जाएगा क्योंकि आप एंटर हो रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से. ठीक है, इसी तरह से जब आप मैश 2 के अंदर मैश एनालिसिस लगाएंगे इस वाली मैश में, तो फिर क्या होगा, अगेन अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इस वोल्टेज सोर्स के अंदर आप कहाँ से एंटर हो रहे हैं, +4 साइड से, तो आप +4 लिखेंगे. ठीक है, इसी तरह से मैश 2 में ही जब आप एंटर होंगे -10 वोल्ट के सोर्स में, तो यहाँ से एंटर होंगे, तो लिहाजा वो -10 लिखा जाएगा. तो यानी ये पूरी जो भी इक्वेशन थी इक्वल टू 0 थी, तो इस सारी कहानी को जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो +6 होगा. ठीक है, +10 -4 इज +6. तो ये क्वेश्चन आपका कुछ एड्रेस हुआ है. ठीक है, अच्छा अब आ जाएं मैश 3 के ऊपर. पूरी इक्वेशन लिखने मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा सिमिलर है, लेकिन अगेन अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है, अज्यूमिंग दैट यू आर मूविंग क्लॉकवाइज व्हेन अप्लाइंग द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो you would be accessing the 12 volt source. ठीक है, from the positive terminal, मतलब यहाँ से आप एंटर होंगे 12 वोल्ट सोर्स के अंदर. तो जब इसकी मैश इक्वेशन लिखेंगे तो आप +12 लिखेंगे. सिमिलरली जब यानी इसी मैश के अंदर जब आप यूं करके आएंगे यहाँ पे, तो आप 6 वोल्ट सोर्स को कहाँ से एंटर करें, नेगेटिव टर्मिनल से, सो यू विल राइट -6. ठीक है, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स जस्ट गो अहेड एंड राइट आउट द कंप्लीट इक्वेशन. फिर आप यहाँ पे आ जाएं 4 ओम रेजिस्टर, तो यू राइट +4 and I3 enters and what exits, I2 exits. ठीक हो गया, इस टर्मिनल से I3 एंटर हो रहा है, तो इस वजह से ये टर्मिनल जो है I3 के रिस्पेक्ट से पॉजिटिव है, बट इट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू I2. फिर आप क्या करेंगे, +2 और 2 में I3 एंटर हो रहा है और क्या एग्जिट हो रहा है, I1. इस टर्मिनल पे I3 एंटर हो रहा है इस वाले पे और I1 एग्जिट हो रहा है. सो I1 के हिसाब से ये टर्मिनल नेगेटिव है, I3 के हिसाब से ये पॉजिटिव है. ठीक है, +3 इस वाले रजिस्टर पे आ जाएं, इसके साथ सिर्फ एक ही मैश करंट है I3, द होल थिंग बिकम्स इक्वल टू 0. ठीक है, तो होपफुली इसके अंदर कॉन्सेप्ट दोबारा रीइंफोर्स हो गया होगा. तो अच्छा, हैविंग डिस्कस्ड दिस, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके सुनिएगा क्योंकि दिस कैन पोटेंशियली कंफ्यूज यू, एंड इफ इट डज कंफ्यूज यू तो फिर जस्ट इग्नोर व्हाट आई से.
बेसिकली मैंने कहा कि हम क्लॉकवाइज भी अप्लाई कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी अप्लाई कर सकते हैं केवीएल। तो अज्यूम करें कि मैं केवीएल अप्लाई करना चाहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ ये, क्योंकि इस तरह ड्रॉ करने से लगता है ये करंट है। ये करंट नहीं है, मैं आई एम जस्ट अप्लाइंग माई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन एन एंटी क्लॉकवाइज फैशन। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। जो आपकी करंट है, जो आपका करंट है वो मैश करंट I1 है, वो जो है क्लॉकवाइज ही है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज केवीएल अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज व्हाट आई डू। सो बिकॉज आई एम गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो I which terminal do I encounter first of the 5 ohm resistor? I encounter this terminal, और इससे जो करंट है वो एग्जिट कर रहा है, I1 current is exiting, therefore this terminal is actually negative with respect to I1। लेकिन क्योंकि I have encountered it first when applying my KVL, तो you know I say -5I1। ठीक है, फिर मैं 2 ohm resistor पे आऊंगा। अच्छा, 2 ohm resistor पे अगेन ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव ही है with respect to I1, because you know I1 exits that terminal but I2 enters that terminal, तो I2 के रिलेशन से it is positive, तो let's just say +2 -I1 -I2। ठीक है, सॉरी +I2। ठीक है, तो 2 कोएफिशिएंट हो गया। कोएफिशिएंट की तो पोलैरिटी नहीं होती, करंट की होती है। तो करंट को मैंने -I1 कहा क्योंकि I1 एक्चुअली एग्जिट्स दिस टर्मिनल, बट I2 एंटर्स दिस टर्मिनल, देयरफॉर I2 के हिसाब से ये पॉजिटिव है, तो I1 के लिए नेगेटिव एंड I2 के लिए पॉजिटिव। ठीक है, फिर हम आगे आएंगे 4 वोल्ट सोर्स पे, और क्योंकि हम KVL लगाते हुए यहाँ से एंटर हो रहे हैं, ठीक है, तो हम सिंपली +4 लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि KVL लगा रहे हैं, यहाँ से एंटर हो रहे हैं। अब करंट चाहे यहाँ से एंटर हो, जहाँ से भी हो, वोल्टेज सोर्स की तो पोलैरिटी फिक्स्ड होती है, वो तो करंट नहीं डिफाइन करती। ठीक है, फिर हम इस रेजिस्टर पे आ गए +2 ohms, तो +2, but the current I1 exits this terminal, therefore this would be -I1, but I3 enters the terminal, therefore we say +I3, the whole thing becomes equal to 0। ठीक है, इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा -5I1 -2I1, बल्कि डायरेक्ट कर देता हूँ, -5 -2 -2, ठीक है, -9I1। उसके बाद I2 है आपके पास +2I2, फिर है आपके पास +2I3 इक्वल्स -4। दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, इफ आई मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन विद -1, तो क्या मिलेगा? 9I1 -2I2 -2I3 equals +4, which is exactly the equation that we had derived previously। ठीक है, ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये कोएफिशिएंट जो ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वालिटी है वो भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस हियर? जी जी जी। इसको करके देख लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर हो, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आप कह रहे हैं कि I1 हमें पहले से गिवन, I1 की एग्जैक्ट डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है हमें, तो हम चाहते हैं कि I1 को एंटी क्लॉकवाइज ले लें, और वो कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला सिनेरियो है आपके क्वेश्चन का, अब आप क्वेश्चन करें। ये डिपेंड करता है कि आप KVL किस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं। जिस तरह से अभी हमने KVL, उसमें हम अभी क्या किया था, हमारा जो करंट स्पेसिफाइड था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, और KVL हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया। तो हमने क्या, हम बेसिकली कर क्या रहे थे, अपने लिए ज़िंदगी मुश्किल बना रहे थे, और कुछ भी नहीं था। क्योंकि व्हेन आई वाज राइटिंग आउट द इक्वेशन, आई माई सेल्फ फेल्ट कि यार गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ख्याल करना। तो मेरी जो एडवाइस है, और पहले भी मैंने दी है, वो ये थी कि ट्राई एंड ऑलवेज गो विद द क्लॉकवाइज करंट, एंड ट्राई एंड ऑलवेज गो विद द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन अप्लाइंग द KVL, ताकि काम आसान हो। लेकिन आई विल आंसर योर क्वेश्चन ताकि चीज़ मजीद क्लियर हो। आपका क्वेश्चन ये है कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एंड द क्वेश्चन इज कि अब करंट जब एंटर होगा रेजिस्टर के अंदर, तो वो माइनस होगा या प्लस होगा। एक्चुअली जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आप KVL किस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो KVL भी आप एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में, दैट इज द सेम डायरेक्शन एज द करंट, तो फिर जिंदगी आसान है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज चाहे वो क्लॉकवाइज हो। कि मैश करंट की जो डायरेक्शन है और KVL की डायरेक्शन अगर दोनों एक साथ एक जैसी हैं, तो फिर जिंदगी आसान है। क्यों? क्योंकि देखें, अभी हमारा मैश करंट है एंटी क्लॉकवाइज, KVL है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट जब एंटर होगा 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू,
इस टर्मिनल से, तो यकीनी तौर पर ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, क्योंकि जहां से भी करंट एंटर होता है रेजिस्टर के अंदर वो टर्मिनल पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट करंट। ठीक है, तो आई कैन सिंपली राइट +2 I1, और इसी तरह से I2 भी एंटर हो रहा है, I2 भी उस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद नहीं एंटर हो रहा है ना, नहीं इस टर्मिनल के अंदर तो दोनों I1 भी एंटर हो रहे हैं, I2 भी एंटर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आई कैन राइट +4, ये वाला जो आपका वोल्टेज सोर्स था। फिर आप अगले एलिमेंट पे चलें +2। ठीक है, +2 करंट I1 एंटर हो रहा है और I3 भी एंटर हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद आप चलें +5 पे, 5 के अंदर भी करंट एंटर हो रहा है, इक्वल्स 0। तो अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, you will find that this is not the same equation as the previous equations we have derived. Can anybody tell me the answer why? Exactly, current change हो गया है, current is different, it's not the same current as before. मैग्नीट्यूड में करंट की जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी, एक ही होगी, लेकिन जिसका जो साइन होगा वो ऑपोजिट होगा। ठीक है, सो 2I3 = 4। तो जो पिछली इक्वेशन डिराइव की थी और जो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखी हुई है, यहाँ पे और यहाँ पे माइनस साइंस है। ठीक है, बट बिकॉज करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, लिहाजा ऑब्वियसली इक्वेशन विल चेंज, ऑब्वियसली द वैल्यू वही रहेगी, बट उसकी जो सिर्फ एक नेगेटिव साइन है उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी भी जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना उसको कम्प्लीटली हमने आंसर नहीं किया है, हम वापस उसी क्वेश्चन पे जाएंगे और इसी काम को हम रिपीट करेंगे विद एन एंटी क्लॉकवाइज विद क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग केवीएल। क्वेश्चन ये था कि करंट की डायरेक्शन हम चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज लें, और फिर मैंने आपको ये बताया था कि नाउ यू ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई कि विच डायरेक्शन यू वांट टू अप्लाई केवीएल अलोंग। ठीक है, तो हमने पहला जो केस किया वो था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में केवीएल अप्लाई करना, लेकिन लेट्स अप्लाई केवीएल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फिर से बताऊं, जो मैश करंट की डायरेक्शन है और केवीएल अप्लाई करने की डायरेक्शन, ट्राई एंड हैव देम टू बी द सेम। ठीक है, अगर वो दोनों ऑपोजिट हैं तो गलती के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, बट एनीवे लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू दिस फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द कंप्लीटनेस। जी जी, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, नहीं पड़ेगा। इसमें केवीएल रूल्स का कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपनी मर्जी से जिस भी डायरेक्शन में लेना चाहे मैश करंट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ऑब्वियसली अगर आपने किसी एक करंट को क्लॉकवाइज लिया हुआ है और आपके जो कोई कुलीग हैं उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है, तो दोनों के आंसर्स जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना, मुख्तलिफ इस तरह होंगे कि सिर्फ करंट्स के साइन में फ़र्क होगा, अदरवाइज जो न्यूमेरिकली वैल्यू आएगी वो वही होगी, बराबर होगी। ठीक है, अच्छा, तो खैर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द क्वेश्चन, कंप्लीटिंग द आंसर टू दैट क्वेश्चन, हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 लिया है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में केवीएल अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस एलिमेंट 2, और बिकॉज वी आर अप्लाइंग केवीएल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो देयरफॉर हमें केवीएल अप्लाई करने के लिए ये डायरेक्शन पकड़ना है। ठीक है, I1 एग्जिट्स दिस टर्मिनल, तो देयरफॉर दिस टर्मिनल इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू I1। ठीक है, तो वी विल हैव टू राइट, रादर लेट मी राइट, कोएफिशिएंट को तो पॉजिटिव करते हैं ना, उसके बाद करंट खुद नेगेटिव है। ठीक है, -I1 कर दें, और जो आपका I2 है वो भी नेगेटिव है, बिकॉज I2 ऑल्सो एग्जिट्स दिस टर्मिनल, सो दिस टर्मिनल ऑफ दिस रेजिस्टर बिकम्स नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू बोथ I1 एंड I2। ठीक हो गया, तो -2 यानी +2 -I1 -I2। अब वो एक्चुअल I1 और I2 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आती है, पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द एक्चुअल पोलैरिटी ऑफ दिस टर्म। ठीक है, वो अभी हमें उससे कंसर्न नहीं है, अभी वी आर जस्ट ट्रीटिंग I1 एंड I2 एज वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो ये है, बिकॉज वी आर प्रोसीडिंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज फैशन in order to apply KVL. So we will write again we will write -5 I1 because I1 exits this terminal. This terminal is नहीं, एक मिनट जरा, I1, हाँ ठीक है, this terminal is negative with respect to I1, so we write -5 I1। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं 2 ओम पे, इस वाले पे, एंड वी सी के जो I1 है वो इस टर्मिनल से एग्जिट होता है, तो दिस टर्मिनल इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू I1 एंड इट इज आल्सो नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू I3 बिकॉज I3 आल्सो एग्जिट्स दिस टर्मिनल, सो वी से -I3। ठीक है, एंड लास्टली वी विल कम टू दिस वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स इज ऑलवेज एन इजी केस
बिकॉज उसकी जो पोलैरिटी आप पहले एनकाउंटर करेंगे आपने सिंपली वही पोलैरिटी कॉपी करनी है जो इस केस में -4 है इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो दिस इज ए again yet another different equation that we get simply because we have chosen the current in the anti-clockwise direction and the KVL to be applied in you know in the opposite direction. Anyway, जो equation है वो depend करती है current के ऊपर. तो बिल्कुल exactly जो पिछली equation थी वही ये equation भी है. ठीक है. हाँ जी. Again थोड़ा सा question जो है वो complete नहीं है. इसके अंदर बहुत सारे इसका एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है वो क्योंकि क्लियर नहीं है. तो जैसे मैं लेकिन जो मुझे समझ में आती है वो मैं आपको बताता हूँ. बेसिकली मुझे आपके क्वेश्चन से जो समझ में आई, जो क्वेश्चन है ना वो कुछ इस तरह है कि पावर रिलीज या एब्जॉर्ब कैसे पता चलेगा बाय लुकिंग एट द करंट्स डायरेक्शन. तो उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अज्यूम करें कि आप अभी यही वाला सिनारियो अज्यूम कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास मैश करंट I1 जो है वो क्लॉकवाइज है. ठीक है. अब हम कहते हैं कि जब हम मिसाल के तौर पे KVL अप्लाई करते हैं और हम इस वी एनकाउंटर दिस एलिमेंट, तो वी विल राइट 5I1 बिकॉज I1 इज एंटरिंग दिस टर्मिनल. तो वी आर अप्लाइंग फॉर अज्यूम करें वी आर अप्लाइंग KVL in a clockwise direction, so we say 5I1 and we say that this terminal is the positive terminal of the resistor, and then we move on. We write the complete equation. Now we still don't know कि I1 जो है उसकी वैल्यू है क्या. अज्यूम करें कि I1 की आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें and you come to the conclusion कि I1 is -5 amperes. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल जो डायरेक्शन थी I1 की वो तो ये थी. ठीक है. इसका मतलब जो ये टर्मिनल है ये एक्चुअली तो नेगेटिव होना चाहिए. क्यों? क्योंकि 5I1 हमने लिखा तो था, +5I1 अपनी तरफ से तो +5I1 लिखा था, लेकिन I1 क्योंकि -5 है तो एक्चुअली दिस इज -25. The voltage dropped across this resistor. If you apply the positive probe here and the negative probe here is going to be -25. In other words, आप opposite direction में polarity check कर रहे हैं. तो hopefully ये जो point अभी मैंने discuss किया ये hopefully ये समझ में आई, क्योंकि this is then related to your question, which is कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि power absorb हुआ, power release हुआ. The answer is कि you will only come to know that after you have completely or fully solved the problem or analyzed the circuit and you already have values of the currents or voltages of each branch. तभी आप किसी एक ब्रांच का पावर हमें बता सकते हैं. जस्ट बाय लुकिंग एट द वेरिएबल या उसकी डायरेक्शन जो हमने पहले अज्यूम की है उससे हमें नहीं पता कि पावर एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है. ठीक है. एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी ये चीज़ हुई कि अगर आप रजिस्टर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमेशा पावर एब्जॉर्ब ही होगा. ठीक है. अगर -25 वोल्ट्स इस रजिस्टर के अक्रॉस अपीयर हो रहा है तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि करंट इज एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन, इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. बस इसका मतलब ये नहीं है कि ये पावर रिलीज कर रहा है. ठीक है. इसका मतलब ये है कि करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड बिकॉज रजिस्टर इज अ पैसिव डिवाइस इट ऑलवेज हैज टू एब्जॉर्ब पावर. एक चीज. दूसरी चीज यही बात हम वोल्टेज सोर्स की कर लेते हैं. अब वोल्टेज सोर्स के केस में दोनों चीजें हो सकती हैं. इट कुड बी रिलीजिंग पावर, इट कुड बी एब्जॉर्बिंग पावर. एब्जॉर्बिंग कब होता है? जब वो मिसाल के तौर पे एक रिचार्जेबल बैटरी है, देन इट इज एब्जॉर्बिंग पावर. तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट होगा करंट तो इट्स गोइंग टू रिलीज पावर, और जब पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर होगा करंट तो इट्स गोइंग टू एब्जॉर्ब पावर. लेकिन एक्चुअली हमने, ठीक है, अगेन हमने I1 की डायरेक्शन तो बता दीजिए क्लॉकवाइज है एंड सीमिंगली इट्स एंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल एंड एग्जिटिंग द पॉजिटिव टर्मिनल, जो बज़ाहिर लग रहा है कि इट्स रिलीजिंग पावर. लेकिन अगेन अज्यूम करें कि I1 की फाइनल वैल्यू आती है -5 एम्पीयर्स. इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो वोल्टेज सोर्स था इट इज एक्चुअली रिलीजिंग पावर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो करंट एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, therefore it is basically charging the voltage source and the voltage source is actually absorbing power. ठीक है. तो आपका क्वेश्चन होपफुली मैंने सॉल्व आंसर किया. ठीक है. ओके. सो बेसिकली ओके, दिस इज ए टॉपिक जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि जी व्हेन डू वी अप्लाई नोडल एंड व्हेन डू वी अप्लाई मैश एनालिसिस. उसके ऊपर थोड़ी सी एक डिस्कशन है. So both nodal and mesh analyses provide a systematic or principled way of analyzing a complex network. ठीक है. जिस तरह पहले भी बताया था कि KVL और KCL तो हमने बहुत पहले पढ़े थे, यानी एट द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स भी पढ़े, और इनफैक्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़े इन योर सेकेंड ईयर फिजिक्स या A लेवल फिजिक्स. लेकिन
when we discuss nodal and mesh analysis, this is where we basically discuss a principled approach, an elegant approach to apply these techniques. ठीक है, अदरवाइज हम बाय इंस्पेक्शन चल रहे होते हैं, मतलब एक क्वांटिटी फाइंड की, उसको प्लग इन किया, दूसरी क्वांटिटी फाइंड की, उसको प्लग इन किया, तीसरी क्वांटिटी फाइंड की. यहाँ पे ये है कि वी सिमिल्टेनियसली ट्राई एंड जॉइंटली फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स. ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज अ मोर एलिगेंट अप्रोच. So choice of the better method is dictated by two factors. The first factor being the nature of the particular network. ठीक है, the key is to select the method that results in the smaller number of equations. तो इसमें एक obvious takeaway तो ये है कि जी if it's a non-planar circuit we have to go with nodal analysis. By the way, non-planar circuits हमने ना कभी इस कोर्स के अंदर किए हैं and probably we won't do them. ठीक है, but if the number of meshes is less than the number of nodes we go with mesh analysis. एंड वाइस वर्सा. ठीक है, इसका जो एक क्लासिक एग्जांपल है वो है जो मैंने आपके साथ किया था व्हेन वी वर स्टार्टिंग आउट विद दिस टॉपिक. ठीक है, इनफैक्ट स्पेसिफिकली उसका मैं आपको जो है वो प्रॉब्लम नंबर बता देता हूँ. इट्स हियर समवेयर, बेसिकली 3.24 एंड 3.25. ठीक है, स्पेसिफिकली 3.24 को मैंने सॉल्व किया था आपके साथ. इट वाज अ नोडल एनालिसिस एंड वी एंडेड अप विद 5 डिफरेंट इक्वेशंस बिकॉज देयर वर 5 नोड्स. ठीक है, ये रिकॉर्ड हुआ है, यू कैन ऑलवेज रिव्यू. और लास्ट वीक का लेक्चर है बेसिकली, मंडे का. उसके बाद हमने उसी प्रॉब्लम को मैश एनालिसिस से किया था एंड वी फाउंड कि उसके अंदर तो सिर्फ 2 मैशेस हैं. तो वुड यू प्रेफर टू एंड अप विद 2 इक्वेशंस इन 2 अननोन्स और वुड यू प्रेफर टू एंड अप विद 5 इक्वेशंस इन 5 अननोन्स? ऑब्वियसली द आंसर इज ऑब्वियस. ठीक है, सो इसी तरह से यही पॉइंट है बेसिकली जो इस इस स्लाइड के ऊपर डिस्कस हुआ है. ठीक है, and obviously the second factor is what is the information required. If voltages are required we might just do nodal analysis. ठीक है, again अगर convenient है तो we might just do nodal analysis, otherwise mesh करके voltage निकाल लेंगे ohms law लगा के. But if voltage is required then instead of going through the hassle of doing mesh analysis and then applying ohms law again to find the voltages, let's just go ahead and find let's just go ahead and do nodal analysis in order to directly find voltages. Anyway, so these are the different factors that you have. ये कुछ examples हैं and let's just look at some of these examples and then we will be able to wind up this lecture or topic rather I should say, which is mesh analysis and nodal analysis. ठीक है, तो यहाँ पे we have 4 nodes 1 2 3 4. They have already been identified for us. थोड़ा सा गौर कर लें सर्किट के ऊपर. There are no other nodes that we can identify besides these nodes that have already been identified for us. मेरी आवाज इसलिए कट गई है कि मैंने बोलना रुक गया था. Anyway, so जी नहीं, आप बिल्कुल कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं. आपको मैट्रिक्स मैथमेटिक्स करके इक्वेशंस को सॉल्व करना या क्रैमर्स रूल का आना लाजमी नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये जो कोर्स है दिस इज़ बेसिकली अ कोर्स ऑन सर्किट एनालिसिस एंड नॉट मैथमेटिक्स. तो जो मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं उसको हमने एग्जामिन नहीं करना. लिहाजा जो कैलकुलेटर अलाउ करता है 3 या 4 equations, that is fine, आप उसको कर सकते हैं. लेकिन if you end up with 5 equations and 5 unknowns तो फिर elimination method आपको आना चाहिए and so on and so forth. ठीक है, तो आप बिल्कुल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा खैर. सो अब ये जो एक प्रॉब्लम है इसके अंदर कहीं भी कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है. ठीक है, तो किसी एक रेफरेंस और नॉन रेफरेंस नोड, सॉरी ये रेफरेंस है और ये नॉन रेफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है और ना ही किसी 2 नॉन रेफरेंस नोड्स के बीच में जो है कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है. तो इसके अंदर कोई सुपर नोड का केस बनता नहीं है. तो इट्स अ वेरी इजी एग्जांपल ऑफ नोडल एनालिसिस. ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू अप्लाई नोडल एनालिसिस. एंड अगर इसके अंदर मैश एनालिसिस लगाने जाएं तो इसके अंदर बहुत सारे मैशेस हैं. ठीक है, कुछ मैश करंट्स जो हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ ये I1 है और अगर मैं बोलूँ ये I5 है and if this is taken to be I7, so it's very easy. We can say I1 is equal to 3 amperes
I5 is basically equal to -4 amperes and I7 is equal to 2 amperes. तो ये तो बड़ा यानी तीन वैल्यूज तो आपको मिल जाती हैं इजीली. लेकिन even besides that you will still have to deal with meshes 2, 3, 4 and 6. ठीक है. And not only that, you will also have to deploy super mesh analysis for this I5 -4 क्यों आया है? I5 -4 इसलिए आया है कि I5 की डायरेक्शन यूं है. ठीक है. अगर आप I5 को क्लॉकवाइज लेते हैं तो डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द 4 एम्पियर सोर्स. ठीक है. तो एक तो ये हो गया कि यू हैव बिल्कुल हमने क्लॉकवाइज करंट्स लिए हैं सारे के सारे मैश करंट्स. एंड जब हमने क्लॉकवाइज करंट्स लिए हैं तो क्लियरली I5 इज इक्वल टू -4 एम्पियर्स. आप अगर चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज लेना, एंटी क्लॉकवाइज ले लें. ठीक है. लेकिन जाहिर बात है जो हमने पिछली डिस्कशन की है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करंट लेते हैं तो ट्राई एंड अप्लाई KVL इन एन एंटी क्लॉकवाइज फैशन. अदरवाइज गलती हो सकती है. यू कैन स्टिल अप्लाई इट इन ए क्लॉकवाइज फैशन, लेकिन ख्याल रखें. दूसरी चीज़ पैसिव साइन कन्वेंशन का ख्याल रखें. ये सारी चीज़ आप करेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर आप क्लॉकवाइज लें, एंटी क्लॉकवाइज लें, कोई मसला नहीं है. अच्छा खैर, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट ऑन दिस स्लाइड इज दैट कि अगर आप नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू डील विद 4 वेरिएबल्स. अगर आप मैश एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू डील विद 7 वेरिएबल्स एज वेल एज ए सुपर मैश. तो मैश एनालिसिस इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो. नोडल एनालिसिस इज मच ईजियर. ठीक है. तो नोडल एनालिसिस के लिए मिसाल के तौर पे हम नोड 1 के ऊपर अगर इक्वेशन अप्लाई करना चाहें, नोड 1 के ऊपर क्या बनेगी? दिस इज बेसिकली V1 over 10 plus V1 minus V2 divided by 5 minus 3 equals 0. इसी तरह से नोड 2 के लिए अगर हम लिखना चाहें तो we get V2 minus V1 upon 5 plus V2 minus V3 upon 8 plus 1 equals 0. अगर हम नोड 3 पे अप्लाई करना चाहें, ठीक है, अगेन बहुत सिंपल सा केस है. V3 डिवाइडेड बाय प्लस V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस V3 माइनस V4 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स 0. अगर हम नोड 4 पे अप्लाई करना चाहें, जी बिल्कुल बिल्कुल होगा. मैं गलती कर गया हूँ. नोड 2 के ऊपर आपके पास मैंने एक ये ब्रांच ली, एक ये ब्रांच ली और एक ये ब्रांच ली. एडिशनली आपके पास 2 और ब्रांचेस हैं. बिल्कुल ठीक है. प्लस V2 माइनस V4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इक्वल्स 0, क्योंकि ये ब्रांच भी है और ये ब्रांच भी है. बिल्कुल ठीक है. यही चीज़ नोड 4 के लिए भी ख्याल रखना है. V4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस V4 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस V4 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1. उसके बाद 2 करंट्स एंटर हो रहे हैं तो वी कैन राइट -2 -4 इक्वल्स 0. ठीक है. तो ये 4 नोड इक्वेशंस बनेंगी. इसके अंदर ये है कि आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज मिलेंगी. उनको जाहिर बात है हमें हैंडल करना पड़ेगा और कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा इफ़ योर कैलकुलेटर हैंडल्स 3 इक्वेशंस in 3 unknowns. अगर आपका कैलकुलेटर इज एबल टू हैंडल 4 इक्वेशंस इन 4 unknowns तो फिर आप सिमिल्टेनियसली सॉल्व करके यू कैन कम अप विद द फाइनल सॉल्यूशन. इफ यू आस्क मी पर्सनली, शायद आई वुड हैव गॉन विद मैश एनालिसिस, सिंपली बिकॉज ये नोडल एनालिसिस में जो एक फ्रैक्शनल वैल्यूज का एक काम है, इट्स क्वाइट अ बिट ऑफ वर्क. तो looking at the problem, looking at the nodal equations, analyzing it in the terms of mesh analysis, I think mesh analysis, even though 7 variables हैं लेकिन उसमें से 3 variables immediately आपको मिल जाते हैं, तो पीछे 4 रह जाते हैं. सुपर मैश इतना कोई मुश्किल दिख नहीं रहा. तो आई थिंक इट्स फाइन. आई वुड हैव गॉन विद मैश एनालिसिस, बट अगेन it has to do with personal preference as well. तो यहाँ पे कुछ हद तक इन्होंने सॉल्व किया हुआ है. जो हमने नोडल इक्वेशंस बनाई थी वही ये इक्वेशंस हैं. दीज आर 4 इक्वेशंस इन 4 अननोन्स. इनको सब्सिक्वेंटली आप सिमिल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज अनदर एग्जांपल जिसके अंदर
अम, जी जी। नहीं, बिल्कुल नोड वोल्टेजेस फाइंड किए जा सकते हैं। क्योंकि देखें, आपको अगर मिसाल के तौर पे I1 मिलता है और I2 मिल जाता है, अज्यूम करें I1 और I2 हमें पता है। I1 तो खैर ऑलरेडी इट्स क्वाइट क्लियर, I1 इज बेसिकली 3 एम्पेयर्स। इसी तरह से I2 भी कंप्यूट हो सकता है। तो जो 10 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, जो उसका जो ब्रांच वोल्टेज है, ठीक है, उसको अगर मैं यूं करके डिनोट करना चाहूँ, V10 ओम ब्रांच वोल्टेज को इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो क्या है? इट्स क्लियरली बाय ओम्स लॉ 10 इंटू, अगर मैं इसको बेसिकली अगर मैं मेजर करना चाह रहा हूँ विद माई पॉजिटिव प्रोब ऑफ द DMM राइट हेयर, तो फिर आई विल से I1 minus I2 because I1 enters this terminal. So this terminal is positive with respect to I1. So this is basically my branch voltage and this is the same as V1. ठीक है? This branch voltage is the same as the node voltage. ठीक है? इसी तरह से इस नोड वोल्टेज को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। इसको भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे। इफ यू नो द वोल्टेज V1, ठीक है, एंड इफ यू नो द करंट थ्रू दिस ब्रांच, ठीक है, तो इस ब्रांच का वोल्टेज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यू कैन सिंपली से V2 इज V1 माइनस V5 ओम। ठीक है, अच्छा, एक मिनट दीजिएगा, मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। आई थिंक मैंने ठीक लिखा है। हाँ ठीक है, क्योंकि देखें V5 ओम रजिस्टर जो है, जो 5 ओम रजिस्टर है, इसका जो ब्रांच वोल्टेज है, अगर आपका पॉजिटिव प्रोब यहाँ पे रखना चाहते हैं और नेगेटिव यहाँ रखना चाहते हैं, तो यू वुड से V1 माइनस V2, राइट। तो V2 would be V1 minus V5, right? Minus V1 plus V5 ohm plus V2 equals 0. ठीक है। एक और तरीका इसको देखने का ये है कि होपफुली ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, एक और तरीके से भी इसको हम देख सकते हैं बाय अप्लाइंग KVL। बेसिकली इफ यू अप्लाई KVL इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, KVL अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप V1 की बात करें, ठीक है, जो V1 वोल्टेज है, तो द वे इट्स रिटन, इसका मतलब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि दिस इज द नोड वोल्टेज, दिस इज बेसिकली V1 इज द वोल्टेज एट दैट नोड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस नोड। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर आप रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे KVL अप्लाई करना, तो यू विल ऑब्वियसली से माइनस V1, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल। ठीक है, सो माइनस V1 प्लस द वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर इज दिस। ठीक है, और फिर नीचे वापस आएंगे KVL कंप्लीट करने के लिए, तो यू विल से प्लस V2 बिकॉज V2 इज द नोड वोल्टेज एट दिस टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस टर्मिनल। ये टर्मिनल पॉजिटिव है V2 के लिए और ये टर्मिनल नेगेटिव है, सो प्लस V2 इक्वल 0। इससे भी वही बात निकलती है, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? V2 इज बेसिकली इक्वल टू V1 माइनस V5 ओम। ठीक है, तो आप बेसिकली नोड वोल्टेज को बिल्कुल कंप्यूट कर सकते हैं इफ यू हैव द करंट्स, इफ यू हैव द मैश करंट्स। तो हैविंग सेड दैट, एक क्वेश्चन अभी किसी ने पूछा था, V2 और V4 के लिए 1 ओम का क्या सीन है? व्हाट, सॉरी। हम्म, नहीं, इसके अक्रॉस अलग नोड्स नहीं लेंगे। उसकी वजह ये है कि ये वही नोड है। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो नोड है, ये सारा का सारा नोड, ये सारा का सारा नोड जो है ना, ये सारा का सारा, ये V2 है। ये एक सिंपल पीस ऑफ वायर है। ये सारा का सारा जो नोड है ये V4 है, क्योंकि यहाँ तक चले जाते हैं। ऑल दिस इज नोड 4। ठीक है, फाइंड द नोड वोल्टेजेस इन दिस सर्किट। अच्छा, ये जो सर्किट है, इट्स अ 4 मैश सर्किट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने मैश एनालिसिस करना है, आई सपोज दैट वुड बी इजी बिकॉज यू नो एक जो करंट सोर्स है उसकी वजह से एक सुपर मैश, ठीक है, ज़रूर बनेगा। बट अगर आप मैश एनालिसिस नहीं करते हैं तो यू विल हैव टू गो विद 2 सुपर नोड्स। ठीक है, बट जिस तरह स्लाइड्स में इन्होंने सॉल्व किया है, लेट्स जस्ट गो अलॉन्ग विद देम एंड ट्राई एंड सॉल्व इट यूजिंग सुपर नोड नोडल एनालिसिस। ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर 2 सुपर नोड्स हैं तो क्या हुआ। लेकिन ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि कौन सा ईजियर केस है। मैश के केस में आपको एक सुपर मैश मिलेगा, नोडल के केस में आपको जो है वो 2 सुपर नोड्स मिल रहे हैं। तो बस ये चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए कि विच यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई विच
which analysis technique would be easier. ठीक है. अच्छा, 4 नोड्स हैं, दो जो हैं वो सुपर नोड्स बनाते हैं, तो you end up with 2 सुपर नोड्स जिनके अंदर अपना एक KVL इक्वेशन भी है. ठीक है. सो इफ यू टॉक अबाउट सुपर नोड 1 2, इसकी एनालिसिस अगर हम करने बैठें तो यू वुड से V1 अपॉन 2 ohms प्लस V1 माइनस V4 अपॉन 3 ohms. ठीक हो गया. जो थर्ड ब्रांच है वो ये, जो यानी जो KCL हम अप्लाई कर रहे हैं नोड 1 पे, तो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि सुपर नोड एनालिसिस कर रहे हैं. बिकॉज दूसरी जानिब जब हम V2 पे जाएंगे तो वो करंट भी हम इग्नोर करेंगे. बेसिकली दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. ठीक है. तो V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 6 एंड माइनस 10 इक्वल्स 0 बिकॉज माइनस 10 इज एग्जिटिंग द नोड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. तो नोड 2 की भी एनालिसिस हमने कर ली, नोड 1 की भी कर ली. बेसिकली हमने सुपर नोड 1 2 को कवर कर लिया है. तो एक इक्वेशन सुपर नोड 1 2 के लिए हमें यहाँ से मिलेगी एंड वी नीड अनदर इक्वेशन. ठीक है. वो कहाँ से मिलेगा? बड़ा सिंपल है. V1 माइनस V2 इक्वल्स 20 बिकॉज देयर इज अ 20 वोल्ट सोर्स हियर विद द पॉजिटिव टर्मिनल एट V1 एंड द नेगेटिव टर्मिनल एट V2. ठीक है. तो वो यही एनालिसिस इन्होंने यहाँ भी की हुई है. नोडल एनालिसिस में बस ये है कि आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज के साथ डील करना पड़ता है. तो 1/6 का एक कोएफिशिएंट है जो V3 से भी मल्टीप्लाई होगा, V2 से भी मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली 0.33 जो है वो V1 से मल्टीप्लाई होगा, V4 से मल्टीप्लाई होगा, 0.5 जो है वो V1 से मल्टीप्लाई होगा. बहरहाल इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन ऑलवेज रीअरेंज द इक्वेशन. आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो इक्वेशन मिल जाएगी इन दिस फॉर्म. सो इस फॉर्म में आपको इक्वेशन को लेकर आना है, वो हमें मिल जाएगा. जब आ जाएगी तो हम उसको 1 कह देंगे. दूसरी जो इक्वेशन हमें मिल रही है इस सुपर नोड से वो ये है. ठीक है. तो इस तरह से सुपर नोड 1 2 को वी कैन इजीली एनालाइज. देन वी हैव सुपर नोड 3 4. अगेन सुपर नोड एनालिसिस है तो वी अज्यूम कि जो बीच में जो वोल्टेज सोर्स है वो बिल्कुल गायब हो गया हुआ है एंड नोड्स 3 एंड 4 आर द सेम. ठीक है. सो नोड्स 3 एंड 4 के ऊपर बड़ा इजी है. ठीक है. V3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 6. तो ये V3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस V4 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है. V4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस V4 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 3. तो अगर उसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये फॉर सम रीजन इन्होंने पता नहीं क्यों इस तरह किया हुआ है. बट एनीवे इसको इस तरफ भी लिखा जा सकता था प्लस V4 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 3 करके. और जो एक दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकलनी है वो ये है. इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक डिपेंडेंट सोर्स वाला केस है. अच्छा गाइस, अगर आपने इफ यू वांट टू स्पीक अप, इफ यू वांट टू इंटरेक्ट, देन मोस्ट वेलकम टू अनम्यूट योर माइक, अदरवाइज कीप इट म्यूटेड. अच्छा, सो दिस केस इज बेसिकली दैट ऑफ ए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. ठीक है. तो उसमें सबसे पहले तो ये अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि इट इज़ अ वोल्टेज सोर्स. ठीक है. बेशक यहाँ पे 3Vx की जगह अगर 3Ix भी लिखा होता तो इट इज़ स्टिल अ वोल्टेज सोर्स. यहाँ पे Ix का होने का मतलब ये नहीं है कि ये करंट सोर्स बन गया. वोल्टेज सोर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है. सिंपल सी बात है. अगर एक डायमंड हो, डायमंड का मतलब डिपेंडेंट सोर्स, उसके अंदर एरो लगा हो जिस भी डायरेक्शन में, तो वो एक करंट सोर्स है. लेकिन प्लस माइनस एक पोलैरिटी है एंड दैट मेक्स इट अ वोल्टेज सोर्स. तो ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं. यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर 3Ix लिखा होता, Ix कोई करंट होता कहीं भी इन द सर्किट, तो वो गलती ये करते हैं कि दे थिंक दिस इज बेसिकली ए करंट सोर्स. ऐसा नहीं है. दिस इज अ वोल्टेज सोर्स. ठीक है. तो बिकॉज दिस इज अ वोल्टेज सोर्स वी कॉन्स्टिट्यूट अ सुपर नोड आउट ऑफ इट, and one of the equations that we can get from this super node is V3 minus V4 equals 3Vx. 3Vx is basically the value of the voltage source. ठीक है. अच्छा, अब इस सर्किट को अगर हम देखें तो इसके अंदर 4 नोड्स हैं और हमें 4 इक्वेशंस भी मिल जाती हैं. ठीक है. 2 सुपर नोड्स हैं तो दोनों सुपर नोड्स में से 2 इक्वेशंस मिलती हैं हमें. ठीक है. लेकिन वी नीड टू इमीडिएटली रियलाइज के ये 5th वेरिएबल है एंड सबसे इसको एलिमिनेट करना सबसे आसान काम है. बाकी जब हम V1 V2 V3 V4 के टर्म्स में इक्वेशंस को लिख लेंगे चारों को, तो फिर हम देखेंगे कि अब कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना सबसे इजी है. लेकिन सबसे जो पहला काम है वो Vx को एलिमिनेट करना है. अगर Vx को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हमें अपने लिए परेशानी क्रिएट करेंगे क्योंकि 5th इक्वेशन कहाँ से आनी है हम ये सोचेंगे और फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा. तो Vx को राइट हियर एंड राइट नाउ एलिमिनेट करने की जरूरत है. ठीक है. तो जिस तरह से यहाँ पे Vx डिनोटेड है, बड़ा सिंपल है. Vx is clearly V1 minus V4. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक्चुअली V1 है.
It's the same voltage, यानी the positive terminal of this resistor, or in other words, the left terminal of this resistor is at the same potential as node 1 with respect to the reference. Similarly, the right terminal of this resistor is at the same potential as V4 with respect to the reference. Therefore, Vx is equal to V1 minus V4. And this value of Vx can simply be plugged into this equation in order to eliminate the variable Vx, ठीक है, because we don't want to carry it forward. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हुई भी है. ठीक है, 3V1 Vx की जगह V1 minus V4. ठीक है, any questions here? Ix या Vx? दोबारा बता देता हूँ. देखें, the left terminal of the resistor, this one, is at the same potential as V1. इस नोड के ऊपर जो है, जो वोल्टेज है with respect to the reference, वो है V1. This is your reference. ठीक है, तो इस टर्मिनल के ऊपर, इस रेजिस्टर के इस टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है वो एक्चुअली V1 है with respect to the reference. इसी तरह से इस टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है वो है V4 because it's connected to node 4, और इस नोड के ऊपर हमें पता है कि V4 है, एक पोटेंशियल V4 है with respect to the reference. ठीक है, जब भी हम वोल्टेज की बात करते हैं ना तो हमें रेफरेंस की लाजमी बात करनी पड़ती है, बिकॉज रेफरेंस के बगैर का मतलब ये है कि फिर वो वोल्टेज नहीं है. वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब है कि यू हैव टू हैव अ रेफरेंस सोर्स. तो बहरहाल ये तो एक पॉइंट की हो गया कि वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस. तो यू कैन से कि पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज V1, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज V4. अब V1 विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस है, ठीक है, कोई मसला नहीं. V4 विद रिस्पेक्ट टू दैट सेम रेफरेंस होना चाहिए. Only then can you subtract these two, ठीक है, because they are with respect to the same reference, in order to obtain the voltage Vx. ठीक है,